Inaugurate the India Mobile Congress 2023, and you can see the industry leaders who are there present with Prime Minister Narendra Modi. The India Mobile Congress 2023 is going to be one of the key events to watch out for when it comes to the digital network in India. I believe there are other ministers also who are present at the function. I believe Mr. Piyush Goyal is also there. The mobile connectivity and ensuring that this connectivity reaches to the masses in the country, the penetration is deeper, is one of the focus areas, the 3G, 4G and the 5G services which have been rolled out over the past few decades, and the manner in which the mobile connectivity has been enhanced across the country with the help of the private operators. The private partnership in this, between this, the government and the private partnership, of course, is the backbone as to how India has been able to achieve the deep penetration of mobile phones. So those are the visuals coming in from the India Mobile Congress 2023. Prime Minister Modi is present there at the function. Nikhil with us on the broadcast. Nikhil, tell us more. Hi, Ms. Girathi. So, Anusha, we are currently reporting from the Bharat Mandapam where Prime Minister is expected to arrive. In fact, we have been given to venue. He is currently meeting the industry leaders, and also what we have been given to understand that Akash Ambani is already here, Sunil Bharti Mittal is also present, and Kumar Mangalam Birla from the Idea Group, Vodafone Idea Group is also present at this particular venue. Among other attendees are also Union Minister Ashwini Vaishnav and Devu Singh Chauhan as well. So in a short while from now, they are going to inaugurate the 2023 session of the India Mobile Congress. Remember, Anusha, last year at the same time in the same venue at the India Mobile Congress, official 5G services were launched and it were thrown open for the public. But this time we need to see as to what exactly are the new things which are going to come up in the technology. For sure, what we are expecting is that the artificial intelligence is going to be the epicenter of the same. We need to see as to how the further technology is going to be developed, particularly the indigenous part which we are talking about. So all the technical team leads, industry leaders, they all are going to be participating in this particular place. So in a short while from now also we are going to show you the visuals from the stage where Rahul Malhotra is showing you the visuals that and in the visuals we can see Prime Minister Narendra Modi is currently speaking with the Chief Technical Officer of the Airtel Group. Last year as well he was present here, as mentioned earlier as well, that 5G services were officially launched. So in a short while from now, Anusha, all of the delegation, the main people including Prime Minister Narendra Modi and the industry leaders, they all are going to be seated at the dais, and Prime Minister is also expected to address the whole gathering. And I would urge my camera person to show you a 360. भारत ने तकनीक के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया के लिए एक निर्यातक के तौर पर काम करें और स्वदेशी तकनीक, चाहे 5G तकनीक हो या फिर 6G की हम बात कर रहे हैं, उसमें दुनिया को हम मुहैया करा पाए, और उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि आप देखें जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें इस तरह के स्लोगन्स है कि बनाएगा भारत, बना रहा है भारत। और हम अपनी तकनीकी प्रगति के साथ साथ जो तकनीक के क्षेत्र में जो विकास, जिसका फायदा तमाम सेक्टर्स को मिल सकता है, न केवल देश में बल्कि दुनिया उसका फायदा उठा सकती है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम एक बहुत बड़े उपभोक्ता बाजार तो है ही, आप देखते हैं कि मोबाइल बाजार की बात करें तो में बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन अब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां भारत में बनी तकनीक दुनिया को उपलब्ध हो, स्वदेशी तकनीक का फायदा दुनिया भर के लोगों को मिल सके। और इसके लिए जरूरी है कि एक इकोसिस्टम हो। इसीलिए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में लैब की बात की जा रही है, जहाँ एक इकोसिस्टम बनेगा, जहाँ एक तरह से रिसर्च होगी, कैसे हम नई तकनीक पर काम कर सकते हैं और कैसे वो एक मानव संसाधन, एक वर्क फोर्स तैयार कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में लैब की शुरुआत भी होने जा रही है, तो ऐसे लैब शुरू होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा एक तरह जो गैप है, हम जानते हैं कि अगर आप बीते दशकों में देखें तो भारत ने
मोबाइल में तमाम तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति तो की थी, लेकिन हम तकनीक के मामले में विदेशों पर निर्भर थे, आयात पर निर्भर थे। लेकिन हाल के वर्षों में एक बड़ा बदलाव आया है, जब हम देख रहे हैं कि हम स्वदेशी तकनीक पर आगे बढ़ रहे हैं, स्वदेशी तकनीक पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और वही जो तकनीक है उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आए, जो प्रदर्शनी का जिसका उन्होंने उद्घाटन किया। और कहीं ना कहीं शैलेंद्र देखा जाए तो एक रुचि जो है वो प्रधानमंत्री लेते हैं, प्रदर्शनी में जाते हैं, वहां पूरी जानकारी लेते हैं और उसके बाद कोशिश वो यही करते हैं कि जो नवाचार को बढ़ावा देने की बात उन्होंने अलग अलग मंचों से कई बार दोहराई है। फिर चाहे जब हम तकनीक को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि एक ना सिर्फ बेहतर निर्माता बल्कि उसके साथ साथ बेहतर निर्यातक की स्थिति में हमारा देश जो है वो खड़ा हो सके। लेकिन तौर पर जब हम तकनीक के क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास कर रहे हैं और दुनिया देख रही है कि भारत ने कितनी प्रगति की है, डिजिटल पेमेंट में हमने देखा कि भारत ने एक अगुवाई की है, तमाम विकसित देश भी भारत से सीख रहे हैं। मोबाइल क्रांति हम देख रहे हैं बीते दशकों में भारत में आई है, स्मार्टफोन आज आपको हर हाथों में दिखाई देता है। तब ये जरूरी है कि भारत इसमें हब भी बने, स्वदेशी तकनीक पर, चाहे वो चिप निर्माण हो, सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ने की बात हो, या फिर 5G तकनीक और 6G तकनीक की बात हो, और इसके साथ ही साथ उस इकोसिस्टम की बात हो जहाँ विश्वविद्यालयों में लैब हो, एक तरह से जरूरी मानव संसाधन हो, उन सब दिशा में आगे बढ़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो तो भारत आ ही रही हैं, लेकिन अब जोर इस बात पर है कि जो हमारी अपनी कंपनियां हैं जो ग्लोबल हो रही हैं, जो ऐसी तकनीक अब उसकी विकास की तरफ और रिसर्च इनोवेशन में काम हो रहा है, जिससे दुनिया को चुनौतियों से निपटने में मदद मिले, तकनीकी उन्नयन में मदद मिले, उस ओर आगे बढ़ा जा रहा है। और यही वजह है कि मोबाइल कांग्रेस ने जोर इस बात पर है कि स्वदेशी तकनीक को किस तरह से और आगे उसको विकसित करके हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया के लिए निर्यातक का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि अलग अलग देशों की जो तकनीकें हैं, शैलेंद्र, पहले बात होती कि हमने अगर कोई कुछ जिसका निर्माण किया है वो उसी देश के पास रहती थी, लेकिन भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर लगातार आगे बढ़ रहा है, और कोशिश यही है कि अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए ना करें बल्कि पूरे विश्व के लिए करें, क्योंकि आज के समय में हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल टिकाऊ विकास के लिए जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और तकनीक के मामले में भी हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक पर निर्भर हो। और निश्चित तौर पर जब हम तकनीकी उन्नयन में आगे बढ़ते हैं या किसी नई तकनीक पे काम करते हैं तो उसका फायदा केवल भारत को नहीं, दुनिया के तमाम देशों को मिलेगा। और जरूरत इस बात की है कि जब इतने बड़े बाजार के तौर पर हम भारत को दुनिया देखती है, तो हम तकनीक के मामले में विदेशों पर निर्भर न रहे, स्वदेशी तकनीक को इजाद करें। और इसका फायदा यह होगा कि एक बड़े स्तर पर रोजगार नए पैदा होंगे, और उस तकनीक की जब हम निर्यात करेंगे या हम चिप बनाएंगे या सेमीकंडक्टर बनाएंगे या 5G और 6G तकनीक स्वदेशी निर्मित करेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो उस तकनीक के खरीदार होंगे, ग्राहक होंगे, उससे दुनिया को भी तकनीकी विकास में आगे बढ़ने में फायदा होगा। तो एक तरह से देखें कि भारत में जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भी फायदा होगा, रोजगार की नई संभावनाएं बढ़ेंगी और तमाम क्षेत्रों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि तकनीकी उन्नयन से नवाचार बढ़ता है और नवाचार बढ़ने से हम जानते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को फायदा होता है। इससे हमारी ग्रोथ को मदद मिलेगी, नए रोजगार के अवसर आएंगे और विकास को टिकाऊ बनाने में भी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शैलेंद्र अगर देखा जाए रोजगार के अवसर का सृजन तो उनका तो होगा ही, लेकिन एक जो विश्वास है जो हमारे देश के युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनका जो विश्वास है वो और भी ज्यादा प्रबल हो सकेगा, क्योंकि उनके लिए अब अवसर जो हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके देश में ही होंगे। और अब तो स्थिति है कि जो बाहरी देशों के लोग हैं वो यहाँ आकर शायद जो रोजगार के अवसर हैं उनको भी प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, आप एक दशक पहले देखें तो ये बात होती थी कि भारत एक बड़े बढ़ता हुआ बाजार तो है, लेकिन हम That's Prime Minister Narendra Modi meeting the business leaders, and Akash Ambani, of course, was present with Prime Minister